short forms? When we write something in shorts, that is called short forms. Most of us write a any letter, a story, and any biography or a detailed information of anything. We used many short forms there because that if we will do in a complete form, then it will be go so lengthy. That's why we always use short forms at there. These short forms always done with pronouns and helping verbs. Pronouns and helping verbs, we know about pronouns. Which words are used in the place of noun? These are called pronoun. As like he for a male, she for a female, it for an animal and or anything. So class, I am going to represent some short forms in front of you in the blackboard. He is a pronoun which stands for a male. Okay, for any boy, any man. So he is a pronoun and he is a helping verb. So now we have to make a short form of he is. How we will do it? First of all, we will write he, then now we will write is in short form. We always form short form with helping verbs. We never touch pronouns. Okay, we always put short forms with helping verb. We mostly skip few letters from helping verb, then we form a short form. At the place of that missing letters, we always put a punctuation sign, and that is apostrophe. At the place of skipped letter, we always put a punctuation sign, and that is apostrophe. So in is we will skip I and then we put apostrophe at the place of I and then S. So I hope this is clear to you all. We never touch pronouns to write a short form. We always do short of helping verb. We always skip few letters from helping verb and put a punctuation sign, which is called apostrophe, at the place of that verb, that missing word. I am repeating my words. We never touch pronouns. We will write pronoun as it is same, and we touch only helping verb to form a short form, and from that helping verb we always skip our few letters or a letter and we put punctuation sign. This punctuation sign, which is called apostrophe, we put apostrophe at the place of that skipped letter. Okay, here you can see, here is a short form of here he is, now she is. Again we will skip I from is and then we will write she, apostrophe and then s. As same with it is, then it. We will skip I and then put apostrophe and then s. So that is clear to you all. We always put I in is and then we have to put apostrophe and then only s. As same we will do with R. As same we will do with R. What we skip in R? A, R, E, R. We skip A in R. In R, we always skip word A. We skip A, then
see there is no any pronoun. At the place of pronoun there is a complete noun here, which is a proper noun. Ramesh is the name of any person, a particular name, special name. So all special names are called proper nouns. And this is a proper noun here. So we have to make short form of helping verb and not. Okay, we will make a short form of helping verb and not. If there is a helping verb and not combination, we never touch helping verb. We always write that helping verb as it is, as like, look at here, a proper noun, then helping verb as it is. Then we will make a short form of not. And to form a short form of not, we always skip letter O. We always skip letter O. Then and at the place of O, we will put apostrophe sign and then T. And that is called isn't. Isn't. In short, when we talk a lot of to any person, any people, and if we explain a lot of things to anyone, we always use short forms in our tongue also. Then we mostly speak is not to is it. Okay, that is short form of is not. And then a complete sentence again. So I hope that is clear to you all. When we form a short form of helping verb and not, helping verb and not, there was a combination of pronoun and helping verb, then we take only helping verb to make a short form. If we have helping verb and not, then we always make a short form of not. We will not touch helping verb. Okay, that it is not as same with are not, do not, most of in our regular language, in our regular term, we mostly say don't touch my things, don't, and that don't word comes from do not. That is the short form of do not. Don't is the short form of do not, which we use regularly in our tongue. Okay, that is clear to you all how to make a pronoun and helping verb short form, and how to make a helping verb and not short form. In not, we always skip letter O, and the place of that letter O, we always put a punctuation sign, and that is apostrophe. Okay, that is clear. I am going to make a table again, and then I will tell you briefly. Is not, isn't, are not, aren't, do not, don't, and
At the place of will not, we always speak won't, and that is we write W, and we will speak three letters, and that is I double L. But in this letter, with this letter we never put apostrophe. It will convert in O. It will convert in O. So W O and in not we always skip O. So at the place of O there is an apostrophe sign and then T. So will not converts in won't. Okay, that is clear. All concepts are clear here. Not with is are and do, and is are and will. These all are short forms. Okay. Now I'm going to tell you in Hindi. जब हम शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं किसी प्रोनाउन के साथ में किसी हेल्पिंग वर्ब को लेकर के, जैसे he is, they are, she will, he, she, it, they, we are, these all are pronouns which we use in the place of noun. So जब हम प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब को लेकर के शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं तो हम हमेशा प्रोनाउन को एज इट इज लिखते हैं, मतलब प्रोनाउंस को में से कुछ भी स्किप नहीं करते, कोई भी लेटर स्किप नहीं करते, उसको हम एज इट इज लिखते हैं। और जो हेल्पिंग वर्ब होती है उससे हम कुछ लेटर स्किप कर देते हैं। स्किप कर देते हैं मतलब हटा देते हैं, छोड़ देते हैं। स्किप करना मतलब छोड़ देना। स्किप करते हैं और जो लेटर हम स्किप करते हैं उसकी जगह पे हम क्या लगा देते हैं? एपोस्ट्रोफी साइन। क्या लगाते हैं? एपोस्ट्रोफी साइन। तो जब हम इस वर्ड जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इस, उसको जब हम शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम कौन सा लेटर स्किप कर देते हैं? इच का। I S
yourself or you can take help of your parents, your elder ones. But try to do this exercise at your home. First try to do it by yourself because this is not so tough. If you will see this video properly, you are able to do this exercise by yourself. Alright, we will meet again in our next class with a new exercise, with a new chapter, and then complete your exercise. Bye bye, take care and Good morning students. This is your second period and this period is of Hindi. Okay. And today is your Hindi language turn. So take out your Hindi language book सौरांजलि हिंदी व्याकरण. ओके बच्चों, ये आपका दूसरा पीरियड है और आपको पता है आपका हिंदी का पीरियड है. तो अपनी हिंदी की बुक बाहर करिए, बाहर निकालिए और पेज नंबर 36. आपको कौन सा पेज नंबर ओपन करना है? पेज नंबर 36 ओपन करिए. पेज नंबर 36 में आपको दिया गया है पार्ट 8 विशेषण. विशेषण, ठीक है. तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ टॉपिक विशेषण. बच्चों, विशेषण क्या होते हैं? जब आप विशेषण शब्द को देखते हैं तो आप इसमें क्या देखते हैं? इसमें एक शब्द लिखा रहता है विशेष. ठीक है, विशेष. ठीक है, विशेष का अर्थ होता है स्पेशल. आप जानते हैं. तो जब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो दूसरे शब्दों को के बारे में कुछ विशेष बताते हैं. ठीक है, कुछ विशेष बताते हैं अर्थात उनके गुणों के बारे में, उनके आकार के बारे में, रंग रूप गुण दोष आदि के बारे में बताते हैं. ठीक है, तो यही क्या कहलाते हैं? जो कुछ विशेष बताते हैं दूसरे शब्द के बारे में, ये क्या कहलाते हैं? विशेषण. ठीक है, जिन्हें आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होते हैं? विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन. जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, क्वालिटी. ठीक है, तो विशेषण वही है जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की क्वालिटी अर्थात विशेषता बताते हैं, कुछ खास बताते हैं, कुछ खासियत बताते हुए क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं. तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं. फिर से आप याद करेंगे, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं. जैसे यहाँ पर मैं आपको कुछ उदाहरण लिख रही हूँ, देखिएगा. बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको उदाहरण के लिए 4 वाक्य दिए गए हैं. आप इन चारों वाक्यों को समझिए और तब आपको विशेषण को समझने में थोड़ी सहायता मिलेगी. जैसे पहला दिया गया है, यह एक सुंदर लड़की है. मैंने पहले क्या लिखा है? यह एक सुंदर लड़की है. दूसरा वाक्य लिखा है, मीरा बुद्धिमान है. तीसरा वाक्य लिखा है, राघव चालाक है. चौथा वाक्य मैंने लिखा है, गुलाब नीला है. तो बच्चों, अभी मैंने आपको विशेषण बताया था. विशेषण के बारे में क्या बताया? जो क्वालिटी बताते हैं. क्वालिटी का मतलब, विशेषता का मतलब उसका रंग रूप कैसा है, उसका गुण क्या है, दोष क्या है, आकार कैसा है. ठीक है, तो विशेषण अच्छा और बुरा दोनों शब्द क्या है? विशेषण ही है. किसी की अच्छाई या बुराई होना भी क्या है? विशेषण ही होता है. तो जैसे यह एक सुंदर लड़की है. कैसी लड़की है? जब हम किसी वाक्य से प्रश्न पूछते हैं कैसी, ठीक है, तो वो हमें उत्तर क्या मिला? कैसी लड़की है? सुंदर लड़की है. और लड़की शब्द क्या है? संज्ञा. ठीक है, तो संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं. अर्थात यहाँ पे सुंदर शब्द क्या है? विशेषण. ठीक है, और यहाँ पर यह शब्द भी क्या है? यह शब्द भी यहाँ पर विशेषण है. यह एक सुंदर लड़की, यह शब्द यहाँ पे किसको इंडिकेट कर रहा है? लड़की को. ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों शब्द क्या है? विशेषण है. मीरा बुद्धिमान है.
में क्या बताया गया, मीरा कैसी है, मीरा बुद्धिमान है। मीरा शब्द क्या है, संज्ञा है, और दूसरी संज्ञा और संज्ञा की बारे में ये बता रहा है ताकि क्या हो गया, विशेषण। तो मीरा बुद्धिमान है, मीरा की क्वालिटी क्या है कि वो बुद्धिमान है। फिर राघव चालाक है, तो सिंपल सा है, राघव कैसा है, चालाक है। तो चालाक शब्द क्या हो गया आपका, विशेषण हो गया। गुलाब नीला है, अब गुलाब का रंग कैसा है, नीला है। गुलाब पीला भी होता है, ठीक है, गुलाबी भी होता है, यह गुलाब कैसा है, नीला। तो नीला शब्द क्या है, उसके रंग के बारे में बता रहा है। ये क्या बता रहा था, गुण के बारे में बता रहा था, ये भी उसके रंग रूप के बारे में बता रहा था, ठीक है। ये क्या है, उसके गुण है, मीरा का गुण है ये कि वो बुद्धिमान है। ये राघव का गुण है कि वो चालाक है। ये गुलाब की का रंग के बारे में बता रहा है कि गुलाब कैसा है, नीला है। तो बच्चों विशेषण शब्द क्या होते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु के रंग रूप गुण दोष आकार अवस्था नाप तौल आदि के विषय में बताते हैं, वे भी विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आपने कहा मुझे 3 किलो शक्कर दे दो, तो कितने किलो, यहाँ पे नाप तौल के बारे में भी जो शब्द बताते हैं वो भी क्या होते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तो 3 किलो शब्द क्या हो गया, यहाँ पर विशेषण हो गया कि मुझे 3 किलो शक्कर दे दो। तो 3 किलो शब्द क्या है, विशेषण है, ठीक है। या मेरे पास 5 कलम है, मेरे पास 5 कलमें हैं, तो अर्थात कितनी, 5। तो यहाँ पे 5 क्या है, गिनती बता रहा है, संख्या बता रहा है, लेकिन कलमों की विशेषता बता रहा है कि मेरे पास कितनी है, 5 है। तो ये क्या हो गया, 5 शब्द भी आपकी जो संख्या बताता है वो भी, वह भी विशेषण कहलाता है। इसके बाद बच्चों अब हम जानते हैं विशेषण और विशेष में क्या अंतर होता है, विशेषण और विशेष क्या होते हैं। बच्चों अब हमने विशेषण सीख लिया, अब हम जानते हैं विशेष क्या होता है। तो विशेषण क्या होते हैं, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको भी बताया, चतुर बालक, बुद्धिमान लड़की, ठीक है, और धार्मिक पुस्तक, कच्चे आम, मोटा आदमी, मोटा पतला, लंबा चौड़ा, गोरा, 3 किलो, 4 किलो, 1 लीटर, 2 लीटर, ये शब्द क्या है, ये सभी शब्द क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं। तो ये विशेषण है। लेकिन ये जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेष कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। विशेष क्या होते हैं, विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे मोटा आदमी, तो कौन मोटा है, आदमी, अर्थात आदमी क्या हो गया, विशेष से, और विशेषण क्या है उसका, मोटा, ठीक है। अर्थात जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताई जा रही होती है वे विशेष कहलाते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ वाक्य लिखे इन उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। जैसे काला कौवा बैठा है, तो कैसा कौवा है, काला, और ये काला शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। लेकिन ये किसकी विशेषता बता रहा है, कौवा की, अर्थात कौवा शब्द क्या हो गया, विशेष हो गया। और इस विशेष की, इस कौवे की क्वालिटी क्या है कि वह काला है, तो काला क्या हो गया, विशेषण, एडजेक्टिव, ठीक है, क्वालिटी बता रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कैसी हवा चल रही है बच्चों, ठंडी ठंडी, अर्थात ठंडी ठंडी किसकी क्वालिटी बता रहा है, क्या ठंडी ठंडी चल रही है, हवा, तो हवा की क्वालिटी वह ठंडी ठंडी चल रही है। तो अर्थात हवा यहाँ पर क्या है, विशेष है, हवा कैसी है और इसका विशेषण क्या है, ठंडी ठंडी, ठीक है। तो जिसकी क्वालिटी बताई जा रही होती है वो शब्द होता है विशेष, और जो उसकी क्वालिटी बताई गई है वो होता है उसका विशेषण। आगे देखते हैं, मुझे 1 किलो शक्कर चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, शक्कर चाहिए, तो शक्कर तो संज्ञा हो गई, लेकिन इसकी विशेषता कितनी शक्कर चाहिए, विशेषता क्या हो गई, 1 किलो, अर्थात 1 किलो यहाँ पर क्या हो गया, विशेषण, और शक्कर शब्द क्या हो गया, विशेष। शक्कर, कितनी शक्कर, 1 किलो, अर्थात ये शक्कर की विशेषता है कि मुझे 1 किलो चाहिए। किसी भी वाक्य से बच्चों जब हम कितने, कैसे, क्या, इन शब्दों के उत्तर पूछते हैं तो जो उत्तर मिलता है वे विशेषण ही होते हैं। रामायण धार्मिक पुस्तक है, अब
क्या धार्मिक पुस्तक है? रामायण। कैसी पुस्तक है? यहाँ पर बच्चों पुस्तक के बारे में क्वालिटी बताई गई है, कैसी है? धार्मिक है। तो रामायण धार्मिक पुस्तक है, अर्थात आपका धार्मिक पुस्तक क्या हो जाएगा? आपका विशेष से हो जाएगा और उसकी क्वालिटी क्या है बताई गई है? धार्मिक। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बच्चों अब हम जानते हैं विशेषण शब्दों का निर्माण कैसे करते हैं। बच्चों विशेषण शब्दों का निर्माण, एक तो कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, जैसे बुद्धिमान है, चतुर है, चालाक है, ये मूल रूप से क्या है? आपके विशेषण शब्द ही हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम कुछ शब्दांश जोड़कर विशेषण बना लेते हैं, जैसे शरीर। तो शरीर आपका संज्ञा शब्द है और शरीर में जब हम कुछ शब्दांश जोड़ लेते हैं तो ये क्या बन जाता है? शारीरिक। ठीक है, तो शारीरिक शब्द क्या हो जाता है? विशेषण बन जाता है। इसी तरह होता है वर्ष। वर्ष में हमने कुछ शब्दांश जोड़े तो बन गया वार्षिक। वार्षिक, वार्षिक शब्द क्या बन गया? ये भी विशेषण बन गया। ठीक है, जैसे अवश्य। ठीक है, अवश्य का क्या बन जाएगा? आवश्यक। ठीक है, ज्ञान शब्द क्या है? संज्ञा है, ज्ञान है उसके पास, लेकिन अगर इसमें हम बड़ी की मात्रा जोड़ते तो बन जाता है ज्ञानी। तो ज्ञानी शब्द क्या है? विशेषण है, किसी की क्वालिटी बताता है। तो बच्चों हमने इस चैप्टर में सीखा संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह विशेष कहलाता है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह विशेष कहलाता है और जो शब्द विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। शब्दों के अंत में हम कुछ शब्दांश जोड़कर विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। विशेषण शब्द व्यक्ति के गुण, दोष, रूप, आकार, विशेषण शब्द व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, नाप तौल, रंग, रूप आदि के बारे में बताते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे गए हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। मैंने अभी आपको परिभाषा बताई है। फिर पूछा गया है साधारण बोलचाल में प्रयोग होने वाले 5 विशेषण शब्द लिखिए। तो बच्चों हम लोग साधारण बोलचाल में सुंदर, बुद्धिमान, चालाक, चतुर, गोरा, काला, लंबा, छोटा, ये सब शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आप इसे समझेंगे और करेंगे। इसके बाद आपको पेज नंबर 38 में कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं, जैसे सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। पहला दिया गया है कि विशेषण क्या है, तो अभी मैंने बताया कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, तो आप टिक कर लेंगे। विशेष क्या है? वे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, फिर गा में पूछा गया विशेषण तथा विशेष में क्या अंतर है। तो विशेषण और विशेष में क्या अंतर है ये भी मैंने आपको बता दिया था कि विशेषण वे शब्द होते हैं जो विशेषता बताते हैं, वही विशेष वे होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। इसके बाद तीसरे अभ्यास कार्य में हमें खंडका में दिया गया है विशेषण को खंडखा के विशेष से मिलाएं। पहले आप इसे करेंगे। जैसे एक दिया गया है उपजाऊ, और उपजाऊ को इन्होंने सियार से मिला दिया है जो कि पूर्णतया गलत है। बच्चों आप इसे ढंग से मिलाएंगे और मिलाकर मैं आपको इसके उत्तर दूंगी, तब आप मैच कर लेंगे। फिर चौथे में दिया गया है नीचे लिखे शब्दांशों में शब्द जोड़कर विशेषण बनाइए। तो नगर में जब हम शब्दांश जोड़ेंगे तो विशेषण बन जाएगा नगरीय। ठीक है, तो क्या बना देंगे आप? नगरीय। अंत का क्या बनेगा? अंत का बनेगा अंतिम। ठीक है, श्रद्धा का विशेषण क्या बनेगा? श्रद्धेय। ठीक है, ऐसे ही आप चमक का चमकीला, राष्ट्र का राष्ट्रीय। तो इस प्रकार से हम इनके विशेषण बनाएंगे। और फिर पांचवें में आपको यहाँ पर रचनात्मक कार्य दिया गया है पेज नंबर 39 में। फिर रचनात्मक कार्य आप नीचे लिखे चित्रों के लिए 2-2 विशेषण लिखिए, इन्हें आप स्वयं करेंगे। ठीक है, और आप कुछ भी लिख सकते हैं जैसे मोटा बंदर, ठीक है, या भूरा बंदर, और गुलाब, लाल गुलाब, और भी आप कुछ भी इसकी विशेषता लिख सकते हैं। तो पहले आप इसे स्वयं करें, फिर आपको उत्तर आपको मिल जाएंगे तो आप मिलान कर लेंगे।
Okay, so students, that's enough for today. We will meet again in our next class. Till then, complete your homework. Okay, and also learn. Bye bye. Thank you. Take care.